सो पिछले लेक्चर में हमने बेरिंग्स की जो मटेरियल है बेबिट मटेरियल तक का डिस्कशन किया था। इसके बाद में टिन बेस बेबिट, टिन 90%, कॉपर 4.5% और एंटीमनी 5% और लीड आधा परसेंट इसमें रहता है। लीड बेस बेबिट्स में ये रेशियो रहता है, लीड का, टिन का, एंटीमनी का और कॉपर का। ब्रॉन्ज मटेरियल भी बेरिंग्स के लिए काम में आता है। द ब्रॉन्जेस alloy of copper, tin and zinc तीनों का alloy है। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मेटल कॉपर, टिन और जिंक का alloy है और जनरली यूज्ड इन फॉर्म ऑफ machine buses pressed into the shell. The bush may be in one or two pieces. The bronze commonly used for bearings materials are gunmetal and phosphorus bronzes. The gunmetal कॉपर 88%, टिन 10% और जिंक 2%। इसका जो कॉम्बिनेशन है अलॉय मेटल, वो गन मेटल है, इज यूज्ड फॉर हाई ग्रेड बेरिंग्स subjected to high pressures, not more than 10 Newton per mm square of projected area and high speeds. The phosphorus branch जो है उसकी जो कॉम्बिनेशन है मटेरियल्स का ये है, कॉपर 80%, टिन 10%, लीड 9% और फॉस्फोरस 1%, is used for bearings subjected to very high pressures, not more than 14 Newton per mm square of projected area and speeds. अब इसके अलावा कास्ट आयरन भी बेरिंग्स के रूप में काम में लिया जाता है। The cast iron bearings are usually used with steel journals. Such type of bearings are fairly successful where the lubrication is adequate and the pressure is limited to 3.5 Newton per mm square and speed of 40 meters per minute. अगर जो प्रेशर है, बेरिंग प्रेशर है, वो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है और मैक्सिमम जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड की, तो हम कास्ट आयरन का बेरिंग्स काम में ले सकते हैं। The silver and silver lead bearings are mostly used in aircraft engines where the fatigue strength is the most important consideration. एयरक्राफ्ट इंजन्स के अंदर सिल्वर बेरिंग्स काम में लिए जाते हैं। नॉन मेटेलिक बेरिंग्स भी है। ये जैसा कि मैंने बताया था कि बुसेस, कई बार बुसेस एज बेरिंग्स के रूप में काम करती है। ब्रास की बुसेस जिनको हम घिसने पर रिप्लेस कर देते हैं, पुश फिटिंग की मदद से हम इसको इंसर्ट करते हैं। नॉन मेटेलिक बेरिंग्स में द वेरियस नॉन मेटेलिक बेरिंग्स आर मेड ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, रबर, wood and plastic. The carbon graphite bearings are self-lubricating, dimensionally stable over a wide range of operating conditions, chemically insert and can operate at higher temperatures than other bearings. Such type of bearings are used in food processing and other equipment where contamination by oil or grease must be prohibited. Soft rubber bearings are used with water or other low viscosity lubricants, particularly when sand or other large particles are present. In addition to the high degree of embeddability and compatibility, the wood bearings are used in many applications where low cost cleanliness, inattentions to lubrication and anti-seizing आर इम्पोर्टेंट। तो यह मुख्य रूप से हमने देख लिया कि जो बेरिंग मटेरियल्स की उनकी प्रॉपर्टीज और बेरिंग मटेरियल्स
जिनके बेरिंग्स बनाए जाते हैं और किस स्पीड के लिए और कौन से प्रेशर के लिए और कहाँ उनके एप्लीकेशंस है। तो इसके अंदर प्लास्टिक के बेरिंग्स भी रहते हैं। द कॉमनली यूज प्लास्टिक मटेरियल फॉर बेरिंग इज नाइलॉन एंड टेफ्लॉन। प्लास्टिक की जो नाइलॉन और टेफ्लॉन कैटेगरी है उसके भी बेरिंग्स बनाए जाते हैं। These materials have many characteristics desirable in bearing materials and both can be used dry. Is that as a zero film bearing, the nylon is stronger, harder, and more resistant to abrasive wear. It is used for application in which these properties are important. Is that elevator bearings, cams in telephone dials, etc. The Teflon is rapidly replacing nylon as a wear surface of inner or liner for general and other sliding bearings because of the following properties. टेफ्लॉन का जो क्रेज है वो लाइनर की तुलना में भी ज़्यादा है, जिसकी वजह निम्न है। इट हैज़ लोअर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अबाउट 0.04 ड्राई एज कंपेयर टू 0.15 फॉर नाइलॉन। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो टेफ्लॉन के लिए 0.04 है और नायलॉन का 0.15 है। तो यहाँ पर जो पावर कंजप्शन है, जो वेस्ट ऑफ पावर है, वो हम बचा लेते हैं। फ्रिक्शन है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। इट कैन बी यूज्ड एट हाई टेम्परेचर्स अप टू अबाउट 315 डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर टू 120 डिग्री सेल्सियस फॉर नायलॉन। नायलॉन के बेरिंग्स जहां 120 डिग्री सेल्सियस तक काम में उपयोग में लाए जा सकते हैं की तुलना में टेफ्लॉन के बेरिंग 315 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर भी कार्य कर सकते हैं और उसी की जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी इसकी तुलना में नायलॉन की तुलना में कम रहेगा। इट इज डायमेंशनली स्टेबल बिकॉज इट डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ये भी है कि कोरोजन का जो इफेक्ट था वो नायलॉन और टेफ्लॉन जो भी है दोनों बेरिंग्स पे भी नहीं रहेगा। इसलिए जहाँ भी मॉइस्चर कंटेन है और कुछ है वहाँ ये बेरिंग्स स्टेबल रहेंगे। इट इज ए प्रैक्टिकली केमिकली इंसर्ट। कहीं भी केमिकली का जो है टेफ्लॉन बेरिंग्स का कहीं भी दूसरे केमिकल्स के इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो नायलॉन जो बेरिंग्स है उसकी तुलना में ये बेहतर रहेगा उपयोग करने के लिए। तो ये बेरिंग मटेरियल्स, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके उपयोग के बारे में हमने इसमें बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट बेरिंग्स के जो रोलिंग टाइप्स है, कॉन्टैक्ट बेरिंग्स, उसके डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।